Hello everyone. The topic for the today is a poem titled Beauty, written by E. A. Shure, prescribed in CBSE for class 6 in the book named Honeysuckle. Let's, let's start the poem Beauty. Beauty. What do you understand by the term beauty? In the simple term, or we can say that beauty is something or anything that makes us look and feel good, which makes us feel happy inside and out. Isn't it? But now, if I say that these small words with 6 letters, that is beauty. Beauty is a simple as well as complex term. We have agreed to it. Some must be saying that it's just a simple word which means beautiful, attractive, etc. For example, the thing which appears beautiful to me may not may not appear beautiful to you. And similarly, the thing which you feel beautiful may not be beautiful for me. So basically, beauty does not have a barrier. Okay, basically, the term beauty can be classified into two types, outer and inner beauty. Outer beauty is something that person's appearance, looks, and physics, whereas inner beauty is something that resides inside a person. It cannot be seen but only felt. In this poem, the poet talks about two beauties. First, the beauty of nature, which she glorifies in the lines of the poem, and second, the inner beauty which we human beings possess. So, बच्चों, in this poem, the in this poem we shall read about the poet. जो हमारे पोएट हैं, जो हमारी पोएट है ई ये शूरे, जो कि क्या है, एक पोएटिस्ट है, एक कवित्री है, ठीक है। तो वो हमें ब्यूटी के बारे में बताना चाहती हैं और वो हमें इस पोएम के माध्यम से ब्यूटी को टू टाइप से बताती हैं। एक तो होती है क्या उनसी वाली, एक तो ब्यूटी होती है ब्यूटी ऑफ नेचर, ओके, जो हमारी आउटर होती है। एक होती है ब्यूटी ऑफ इनर, ओके, इनर ब्यूटी जो हमारे अंदर होती है, ओके। कई बार हम किसी चीज़ों को देखकर ये सोच लेते हैं या ये मान लेते हैं कि ये बहुत सुंदर है, और कई बार कुछ चीज़ें देखने में बहुत अगली होती हैं, ओके, बट वो अंदर से बहुत ब्यूटी होती है। तो वही चीज़ें हम इस पोएम के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि पोएट हमें बताना भी चाहती है, ओके। सो नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. So, in this poem, in this stanza, the poet said that beauty can be seen everywhere, as our surrounding is full of beautiful things. Okay, beauty can be seen by all of us in the surrounding. It can be seen in the sunlight, the trees, and the birds. हम सब अपने चारों ओर ब्यूटी को देख सकते हैं, खूबसूरती को देख सकते हैं। इसे सूर्यों की रोशनी में भी देखा जा सकता है, पेड़ों एवं पक्षियों में भी देखा जा सकता है, ओके। इट कैन बी सीन वेयर पीपल आर वर्किंग हार्ड, cultivating their land and growing crops. Beauty can be seen when farmers dance for their harvest. वो लोग जो बहुत मेहनती होते हैं, उनमें भी ब्यूटी को देखा जा सकता है, जो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, फसल उगाते हैं, ओके।
जब किसान अपनी फसल के लिए नाचते हैं तो वह खूबसूरत समा होता है। आगे बात समझ में, मतलब ये कि जो फार्मर्स हार्ड वर्क करके अपनी फसल को उगाते हैं और जो वो अपनी फसल को देखते हैं कि फसल बहुत अच्छी हुई है, उनमें जो खुशी होती है, ओके, जो वो नाचते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, खूबसूरत समा कहते हैं या खूबसूरत टाइम है उनका वो। इसलिए कहा है कवि ने कि ब्यूटी कैन बी सीन बाय ऑल ऑफ अस इन द सराउंडिंग। ब्यूटी को कहीं भी या अपने चारों ओर हम उसको देख सकते हैं। इन द सेकेंड स्टेंजा, ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, wind singing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. In the second stanza, the poet said, beauty can be heard in the surrounding during the night. सेकंड स्टैंजा में कवि हमें बताते हैं कि जो खूबसूरती है वो अपने चारों ओर देखी जा सकती है, और अगर हम ध्यान दें तो रात के समय में भी वो हमें सुनाई देती है। ओके, इट कैन बी हर्ड ड्यूरिंग द रेनफॉल और व्हेन अ सिंगर सिंग इन फुल स्विंग। अगर हम ध्यान दें तो ये रेनफॉल, बरसात के समय हवा में बहने के दौरान भी हम खूबसूरती को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसे बरसात के दौरान जो रेनफॉल का वर्ड यूज किया गया है, एक जो सिंगर है अपनी गायन अपने गाना गाते समय, मतलब गाते समय के दौरान, गाना एक जो गायक है अपने गायन के दौरान भी हमें उस ब्यूटी को सुना सकता है या हम उस ब्यूटी को सुन सकते हैं। A person needs ears to hear it. The words is full of beautiful things. बस इंसानों को उसे सुनने के लिए कान होने चाहिए। पूरी दुनिया में जो ब्यूटी है वो हर चीज़ों में क्या है, मौजूद है। मतलब सेकंड स्टेंजा में जो पोएट है वो हमें यहाँ पर आउटर थिंग की बात बता रहे हैं, दोनों स्टेंजा में, फर्स्ट और सेकंड में, कि हम ब्यूटी को रात के समय में भी सुन सकते हैं। और जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान जो हवाएं चलती हैं उसमें भी हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। और जो सिंगर है जो एक गाना गाता है, ठीक है, उसमें भी हम ब्यूटी को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. So बच्चों, in this last stanza and third stanza, द पोएट सेज, बहुत अच्छी बात बताता है पोएट हमें। पोएट कहता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, ब्यूटी लाइज विद इन अस। समझ में आ गया? पोएट कहता है कि जो ब्यूटी है वो हमारे साथ रहती है, हमारे अंदर रहती है। Everyone can feel beauty when we do good things and good thought come to our mind. यहाँ पर कवि हमें बताती हैं कि हमारे अंदर हर कोई खूबसूरती को महसूस कर सकता है। कब? अगर हम अच्छे काम करें, हमारे मन में अच्छे ख्यालात आएँ या अच्छे विचार आएँ, तो तब हमारी जो खूबसूरती है उसे भी लोग महसूस कर सकते हैं। It gets reflected and things become beautiful. यही हमारी सोच में क्या होता है, दिखता है और हमें क्या बनाता है, खूबसूरत बनाता है। गुडनेस गेट्स रिपीटेड इन आवर ड्रीम्स। जो हमारी अच्छाई होती है हमारे ड्रीम्स में आती है। वर्क्स एंड इवन व्हेन वी टेक रेस्ट। और जो भी हम काम करते हैं, काम में हमारे आराम करने में भी झलकती है। इट मीन्स दैट इन द थर्ड स्टेंजा जो पोएट है वो हमें यहाँ पर दो चीज़ों को बताती है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा, वी हैव सीन दैट द पोएट टॉक्स अबाउट आउटर ब्यूटी। ऊपर की जो दो स्टेंजा हैं उसमें जो पोएट्री हमें बात करती है वो आउटर ब्यूटी की बात करती है, ओके। लेकिन इन द
थर्ड स्टेंजा शी टॉक्स अबाउट इनर ब्यूटी। तीसरे स्टेंजा में वो हमारी इनर ब्यूटी की बात करती है। वो हमें कहती है कि जो सुंदरता है, ब्यूटी इज़ इन यूर सेल्फ। जो सुंदरता है वो उसे हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे अंदर है। वो कैसे है? गुड डीड्स हैप्पी थॉट्स। अगर हम क्या करें, अगर हम अच्छी चीज़ें करें, ओके, अच्छे विचार लाएं, ठीक है, लोगों का भला करें,